Prime Minister Narendra Modi has also announced that former PM PV Narasimha Rao will be honored with the Bharat Ratna Award as well. So that's big news coming in now. Former PM PV Narasimha Rao to also be conferred with the Bharat Ratna Award. So two former Prime Ministers being conferred with the Bharat Ratna Award today, Himanshu Bhatt, Chaudhry Charan Singh and PV Narasimha Rao. Your interpretation of both these big announcements? They are big announcements, and it's in line with this government's motto: "Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabki Respect, Sabka Samman." That Sabka Samman needs to be understood in a proper perspective. When you are talking about Chaudhry Charan Singh and his RLD likely to switch sides, well, political bigwigs are talking about that. Political beeline is also making rounds. But then, Chaudhry Charan Singh, this government has given a very clear message that, Kisan leaders, Kisan netas are always respected. And their contribution to the nation is recognized. This is a symbol. Chaudhry Charan Singh getting Bharat Ratna is a symbolic way of telling, farmers of this country that we do not forget you. You are one of our part. Similarly, PV Narasimha Rao may have been a congressman, but he was the man who opened the door of India for the world. The basic liberalization policy was done by him. So you cannot take that away from him. And more so, PV Narasimha Rao himself was a scholar of languages. There's a story which says, he had packed his bag and he was ready to go back to his native town when someone came and said, "You are going to be the Prime Minister now." The story is also making ground. So I don't see anything wrong. Yeah, people will say so many things. Elections are coming and so Chaudhry Charan Singh has been, honored with Bharat Ratna. But then they give it to Karpuri Thakur also in Bihar. Absolutely. So, basically you have to understand that deserving people, what should have got before, have not got their due. Yes, it's quite interesting, cutting across ideologies, cutting across the spectrum, people being recognized by this government. Political reactions are pouring in to this big story. Let's quickly take them. किसानों को थी और बड़ी खुशी की बात है। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन कि उन्होंने किसानों की सबसे बड़ी मांग जो थी, जो चरण सिंह को भारत रत्न देने की हमेशा सभी पार्टियों की मांग थी, सभी सांसदों की मांग थी। शायद ये मांग मुझे नहीं लगता किसी और व्यक्ति के लिए इतनी कभी मांग उठी हो। तो प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पीवी नरसिंह राव और एम एस स्वामीनाथन, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ माननीय चौधरी चरण सिंह जी के भारत रत्न देने के लिए और माननीय प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी ने Dushyant Kumar Gautam, BJP National Secretary, is joining us now on the broadcast. Dushyant Kumar Gautam ji, your first reaction, big announcement being made by the Modi government, conferring Bharat Ratnas to two former Prime Ministers today, Chaudhry Charan Singh and PV Narasimha Rao. मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी का, दो पूर्व प्रधानमंत्री जी को जो उन्होंने भारत रत्न देने की और एक हमारे वैज्ञानिक हैं उनको भारत रत्न देने की जो घोषणा की है, बहुत स्वागत योग्य है। क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी किसानों के नेता रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं, किसान हमेशा उनकी मांग करते रहे, सभी लोग की उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। ऐसे ही नरसिंह राव जी ने भी कांग्रेस के नेता रहे हैं और उनको भी भारत रत्न देने का मतलब सीधा है कि हम सर्वग्राही, हमारे मन में कोई राजनीतिक द्वेष या भावना ऐसी नहीं रहती है। हम सभी को, जिन्होंने भी देश को बढ़ाने के लिए योगदान दिया है, हम सबको बराबर का सम्मान देते हैं। और वहीं आप देखेंगे कांग्रेस तो अपने परिवार से ही नहीं निकल पाती। अपने परिवार में इंदिरा गांधी को जीते जी दे दिया, किसी को मरण उपरांत 1 साल तक के बाद दे दिया। सारे भारत रत्न उन्होंने राजनीतिक प्रेरित करके दिए।
लेकिन आज लगता है कि भारत रत्न एक अच्छे जिन्होंने देश के लिए योगदान दिया है उनको देने का कार्य चल रहा है। साइंटिस्ट को दिया है जिन्होंने देश के निर्माण में भागीदारी की है, और चरण सिंह जी का अपना कार्यकाल और किसानों के लिए संघर्ष कार्य किसानों को दिशा देने के लिए बिल्कुल। मुझे लगता है और ये दिलचस्प बात ये है, जैसे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के आगे बढ़ नहीं पा रही है क्योंकि कांग्रेस की सरकार रही है, मगर पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न कभी नहीं दिया गया, और आरएलडी भी रही है यूपीए के हिस्सा, मगर चौधरी चरण सिंह को उस समय ये पुरस्कार से नवाजा नहीं गया। अब जाके मोदी सरकार ने ये निर्णय लिया है इन दोनों नेताओं के लिए, और अपर्णा यादव भी अभी हमारे संग थी, उन्होंने कहा यही सरकार ने नेताजी मुलायम सिंह जी को भी पद्म विभूषण से नवाजा था। जी जी, ये सरकार की खूबी है, हमेशा हमने किसी को जाति धर्म या पार्टी के उस हिसाब से नहीं देखा। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है हमारी सरकार से पूर्व, उन्होंने कभी किसी का सम्मान नहीं किया, वो अपने कोई सम्मान बल्कि अपमान करने का। मुझे ध्यान है सीताराम केसरी जी का किस प्रकार से अपमान किया, नरसिंह राव जी का किस प्रकार से अपमान किया। उन्होंने अन्य नेहरू परिवार से अलग हटकर किसी की भी बात आई तो अपमान के अलावा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो एक परिवारवाद है, परिवार के प्रति समर्पित हैं सारे के सारे लोग, तो इसलिए उसी पृष्ठभूमि पे वो लोग चलते हैं। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सर्वांगीण विकास ही नहीं हो रहा, जिन लोगों ने विकास की पृष्ठभूमि रखी है, जिन्होंने इसकी नींव रखी है, सबको सम्मानित किया जा रहा है। दुष्यंत जी, आखिरी सवाल आपसे। जयंत चौधरी ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है दिल जीत लिया, तो क्या ये माने कि आप उम्मीद करेंगे कि राष्ट्रीय लोकदल भी एनडीए का हिस्सा बने? देखिए, मेरा मानना ये है कि आज की तारीख में एनडीए का हिस्सा नहीं, एनडीए का लगाव और प्यार जो कांग्रेस में नेतागण काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मन से कहते हैं कि ये सरकार विकास भी कर रही है, गरीबी की रेखा से निकालने का भी काम किया है, गरीबों की भी है, किसानों की है, मजदूरों की है। और वहीं कांग्रेस जहां जातिवाद का खिलवाड़ कर रही है, खेल खेल रही है, उनके नेता बहुत असंतुष्ट है और समय समय पर, क्योंकि देश से प्यार करते हैं, राष्ट्र से प्यार करते हैं, अपनी भूमिका को बताते रहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है, कब तक रुक पाएंगे वहां पर समझ में नहीं आ रहा। जी बिल्कुल। दुष्यंत गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी स्पीकिंग टू न्यूज़ एक्स देयर। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.